everyone. So, Good evening, sir. today I will be continuing with whatever we are studying in the computer architecture. तो लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा था डिफरेंट फेसेस ऑफ अ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। हमने कैसे किया था? सबसे पहले फेच की थी कोई इंस्ट्रक्शन, देन वी हैव स्टार्टेड डिकोडिंग इट, एंड देन वी स्टार्टेड विद calculating the effective address. Effective address calculation is required only in indirect addressing, whereas in direct addressing, memory stall, cycle stall was available. And in case of input output instruction or register related instruction, we did not want to calculate any effective address and we have started directly execution. Whereas in memory related instruction, we started execution from T4. This is what we have studied till now. Now I would like to explain a very important concept here today. The concept is hard wired versus micro programmed architecture. Okay, or not architecture, maybe we can say that instruction. तो हमने देखा अभी तक जब हम फैच कर रहे थे किसी इंस्ट्रक्शन को, तो हमने T1 T0 और T1 में फैच किया था. देन हमने डिकोडिंग स्टार्ट की थी T2 में. देन हमने इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन की थी T3 में. वी हैव नॉट डन एनी इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन इन केस ऑफ input related instruction or register related instruction, whereas in memory related instruction either it was stall or it was effective address calculation. And we have started execution from T4, and it may take one cycle or two cycle or maybe more number of cycle, and for that we have also implemented some hardware. So here you see there is a diagram. नाउ अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. सपोज कीजिए हमारे पास एक ये AR एड्रेस रजिस्टर है. इस एड्रेस रजिस्टर में हमारे पास तीन हमने सिग्नल्स रखे हुए हैं, और ये तीन सिग्नल क्या हैं? एक है लोड, एक है इंक्रीमेंट और एक है क्लियर. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक भी है. यहाँ पे ये बस से और ये कनेक्टेड है. हमारे पास यहाँ पे बस है जिससे ये रजिस्टर कनेक्टेड है. तो देखिए हमें इस लोड और इंक्रीमेंट या क्लियर इंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए क्या चाहिए. जब हम इसको लोड करेंगे, सो व्हाट वी नीड इज सी दिस. हमें इसको लोड करने के लिए पहली चीज आर बार चाहिए. क्यों चाहिए आर बार? क्योंकि इंटरप्ट साइकिल नहीं होनी चाहिए. वी हैव सेड दैट आर इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ इंटरप्ट साइकिल और इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, वेर एज आर इज इक्वल टू 0 इन नॉर्मल इंस्ट्रक्शन. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. तो आर बार दैट इज R0 होना चाहिए, तब उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा. And in T0 we will be doing fetching. T1 again fetch. तो हमारे पास ये वाला क्या काम कर रहा है? फैच करने का. देन अगेन आर बार होना चाहिए और T2 हमें चाहिए डिकोडिंग के लिए. देन देखिए यहाँ पे D7 गिवन है. वाई D7? बिकॉज इफ यू रिमेंबर D7 वॉज 1 इन केस ऑफ register related instruction or IO related instruction, whereas D7 was 0 in memory related instruction. ये हमने पढ़ा था. तो अगर D7 प्रेजेंट होगा तभी तो हम इस रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेंगे, दैट इज लोड इंस्ट्रक्शन. तो इसीलिए D7 प्रेजेंट होना चाहिए और I हमारा 1 होना चाहिए. 1 होना चाहिए क्योंकि I अगर 1 होगा तो रजिस्टर रिलेटेड है और I अगर 0 होगा तो IO रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है. हमने ये भी पढ़ा था. ओके.
सॉरी, आई अगर ज़ीरो होगा, आई एम सॉरी फॉर ईयर, सो आई अगर वन होगा तभी ये रजिस्टर रिलेटेड या आईओ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होगा, अदरवाइज आई थिंक आई एम करेक्ट, I must be present. See, in case of I equal to 0, we said that direct, and I equal to 1, we said that indirect. Okay. Yes, I think this was the scenario. And here I is present, that means we have to calculate. Yes, yes. Okay. So I equal to 1, that means indirect instruction, and that means we have to perform T3, that is not stall, we have to calculate the effective address. Yes, this I is nothing to do with register or IO related instruction, but here I is related to direct and indirect instruction. So indirect means we have to calculate the effective address. If I was 0, then we need not to calculate the effective address. So if I is present, then T3 must be occur, and it should not be, it should not be stall. So combination of all these things will make load of AR. ओके, तो उसी को हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम में बना दिया. कैसे, देखिए, ये आर बार और टी ज़ीरो. सो वी हैव गिवन आर एंड दिस नॉट गेट टू दिस, एंड दिस इज टी ज़ीरो, दिस इज टी ज़ीरो एंड आर बार. इन दोनों का हमने एंड किया, ये हमने लगाया. देन आर बार टी टू, सो आर बार इज दिस एंड टी टू इज दिस, एंड देन डी सेवन आई टी थ्री. So T3 I and D7. Okay, so why D7 bar? Why? Because D7 must be 0. D7 bar is present, not D7 bar, it should not be bar, it should not be bar, it should be D7. Okay, so here we have done these three ANDs and given to OR, and this is what we got as the load instruction. Similarly, clear करने के लिए क्या चाहिए, अगर हमें clear करना है तो हमें कोई fetch करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी लोड नहीं करना है, हमें कुछ भी एड्रेस कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस क्लियर इनपुट को एक्टिवेट करना है. तो हम उसको केवल एक ही साइकिल में कर सकते हैं, T0, और ये आर हमने क्या बोला, इंटरप्ट साइकिल. तो क्लियर क्यों करते हैं इंटरप्ट साइकिल में, इफ़ यू रिमेंबर दैट इंटरप्ट साइकिल में हमने क्या किया था, ज़ीरो वाले एड्रेस पे जाके अपना रिटर्न एड्रेस कॉपी किया था, सो दैट आफ्टर रनिंग द इंटरप्ट सर्विस रूटीन वी कैन कम बैक टू दैट नेक्स्ट एड्रेस. तो इसीलिए ये हमने इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लिए इसको क्लियर किया था. तो हमने यहाँ पे क्या किया, आप देख सकते हैं, दिस क्लियर इज added to R and this is T0, and this is increment, then D5 T4. Why D5 T4? because इस T4 से पहले fetching ये वो सब कुछ जो भी होना था हो चुका है, and D5 is my incrementing and T4 is the execution phase. तो हमने उसी तरह से D5 और D4 को increment के ऊपर दे दिया. तो ये hardwired, द क्रिस्प एंड क्लियर मैसेज हियर इज हार्ड वायर्ड है. इसके अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे अगर आपको कोई और इंस्ट्रक्शन बनानी हो तो उसके लिए फिर से आपको इसके अंदर हार्डवेयर जोड़ना पड़ेगा, या अगर आप इसके अंदर कुछ और इंस्ट्रक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहें देन रीवायरिंग इज़ रिक्वायर्ड. इन वायर्स को, इन गेट्स को दोबारा से पूरा का पूरा तोड़ के जोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज हार्ड वायर्ड इन विच इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, वेयर एज ओके इट इज ऑल्सो, बट इट इज वेयर एज इट इज फास्ट. वाई इट इज फास्ट? बिकॉज एवरीथिंग इज इन प्लेस, वी नीड नॉट टू कैलकुलेट एनीथिंग हियर, and it will be really fast at a speed of current. Okay, so it is fixed, we don't have much flexibility here, but it is fast. इसको हम यूज़ कहाँ पे करेंगे,
जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम हो। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट 5, 7, 10, 20 इतनी इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो हम उसका हार्डवायर्ड सर्किट बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, लेट्स से 1 लाख, 1 लाख बहुत ज़्यादा हो गई है, लेट्स से 1000 इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो 1000 इंस्ट्रक्शन में इतना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बनाना एक टीडियस टास्क है, एक बहुत ही क्लुम्बरसम हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हार्डवायर्ड इंस्ट्रक्शंस मे नॉट बी वेरी suitable way. Okay, so you can read it here. The control unit uses fixed logic circuit to interpret instruction, generate control signal from there. ठीक है, अब ये कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे, ये कंट्रोल सिग्नल है एक्चुअली, इनको जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, फिक्स्ड लॉजिक सर्किट का यूज किया। Every control signal is expressed as SOP, sum of product expression, and realized using digital hardware. That you can see here. This is SOP form, what we have studied in digital design, if you remember, sum of product form, और इसको हमने अपने लॉजिक गेट से डिज़ाइन किया है। देन कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड फास्ट देन माइक्रो प्रोग्राम। जो अभी हम माइक्रो प्रोग्राम पढ़ेंगे उससे ये फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ और भी काम करना पड़ेगा जिसमें टाइम लगेगा, डिले आएगा, लेकिन यहाँ पे डिले जो भी होगा वो 1-2 गेट्स का ही है, इसके अलावा और कोई सर्किट का नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डिकोडर यूज़ करता या एनकोडर यूज़ करता तो वो अपना डिले और ऐड करता, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि एनकोडर क्या है, वो भी बहुत सारे सर्किट से, बहुत सारे गेट से मिलके बना है। उसके अंदर हो सकता है 2-3 लेवल ऑफ गेट्स आर रिक्वायर्ड विच विल ऐड सम डिले, तो वो स्लो हो जाएगा। अलाउज टू अनेबल साइमल्टेनियसली कंट्रोल सिग्नल। यहाँ पे हम एक साथ इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, तीनों को एक्टिवेट कर सकते हैं। वाई? वी कैन डू मे बी लोड ऑफ AR, clear of let's say DR, that is data register, and increment of program counter। हमने एक इंस्ट्रक्शन में देखा भी था कि T0 में हम क्या कर रहे थे, जब हम फैच करने की कोशिश कर रहे थे, सो वी हैव ट्रांसफर्ड our program counter into एड्रेस रजिस्टर। और T0 में हमने क्या किया था, T1 में हमने मेमोरी ऑफ AR को पुट किया था IR में, और साइमल्टेनियसली हमने प्रोग्राम काउंटर को प्लस कर दिया था। ठीक है, सो हमने ये दो काम एक साथ कर दिए। दिस इज वी कैन डू साइमल्टेनियसली, एंड द रीजन इज सिंपल, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो allows enable simultaneously control signals. Relatively less flexible because any changes in micro operation or control signal require redesign or rewiring. अगर कुछ भी हम चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा सर्किट रीडिज़ाइन करना पड़ सकता है, तो इसीलिए ये क्या है, लेस फ्लेक्सिबल। रिलेटिवली लेस फ्लेक्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल एंड इंस्ट्रक्शंस, तो हम इसको वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कम नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट हो, 8, 10, 20 तक। अगर 1000 कंट्रोल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2000 कंट्रोल सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम वहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेड इन RISC ऑपरेशन, दिस RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमने जब RISC और CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा था, उस समय हमने लास्ट लाइन में लिखा भी था कि RISC में हम यूज़ करते हैं हार्ड वायर्ड और CISC में हम यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड। ओके, so this is the basic theory of hardwired, and we have already done hardwiring multiple times in the previous lectures also, and here also you can see one of the example. In next video I'll give some questions and we'll try to solve some questions which came in GATE earlier.